अगले दिन भी बस बिना कोई हार्ड एंड फास्ट आइटनरी बनाए हम कार में बैठे और निकल पड़े। और इस बार रियलाइज हुआ कि गोवा के रास्तों में ड्राइव करने का मजा तब है जब कहीं पहुंचने की जल्दी ना हो। नीट एंड क्लीन रोड्स, कलरफुल होम्स विद अ सोलफुल हिस्ट्री एंड अ लेजरली पेस ऑफ लाइफ। इन्हीं रास्तों में चलते हुए हम पहुंचे राशौल। दिस इज अ स्मॉल विलेज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ जुआरी रिवर इन साउथ गोवा। During the Portuguese rule, Rashol also had a famous fort. Sadly, all that remains today is the old arched gateway. This area was quite, in the sense, rich, and many rich people used to stay here. Besides that, it encompasses a church, which is the main church of this area, and then it has a seminary, which is one of the biggest seminaries in Goa. Seminary is basically seminary में some sort of a educational institution. Correct. जब भी गोवा या पौंडीचेरी गया हूँ तब हर बार एक चीज रियलाइज की कि अगर वहाँ की लश बीचेस और स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी को कोई कॉम्प्लीमेंट कर सकता है तो वो है यहाँ के ब्राइट कलर्ड हाउसेस। ब्लू, येलो, पर्पल एकदम स्टैंड आउट से लगते हैं। बट आज तक हर बार या तो इनको आते जाते देखा या एक इंस्टाग्राम वर्दी पिक खिंचवाने के लिए। बट कभी सोचा है कि like any other home, even these have a story to tell. The reasons they were built the way they are, the people who have stayed, and the stories that took place here. There was a plague here. Plague? In the 1800s, and people had to move out because of the widespread, and because there was no vaccine as such. And then all this thing was basically in ruins. So there were a lot of structures broken down, and eventually over the years, and so after a lot of years, people again started coming back to the village, and then a lot of settlements happened. That's why the houses are quite modern. Yeah. So the idea behind soul traveling was, to change the way people perceive travel. We wanted to do something about the way Goa is perceived. Yeah, मतलब क्या है ना कि there are a lot of stereotypes associated with Goa. They call the 3 B's, Right. Beach, bikini and beer, something like that. So this connotation is very much known, and maybe it is the way it is because it is marketed as well पहले से ही. But we also say that there is a lot more. सोच लो कि आप अगर नॉर्मल साइट सीइंग कर रहे हो तो यू विल नेवर गेट अ टाइम टू सिट हियर एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। और यही मजा है स्लो ट्रैवल का। कोई मास्टर प्लान नहीं फॉलो करना, जस्ट एंजॉय द प्लेस एंड द मोमेंट यू आर इन। केदार यार, वो जो इतना हैवी अच्छा वाला लंच करके अब एक ऐसी जगह आप लेके आए हो जहाँ सीरियसली मतलब मेरा ना अब कुछ करने का मन नहीं है। तो ऐसा है कि बस पढ़े रहो अब यहाँ 5-6 बजे तक, क्योंकि उससे ज़्यादा और कुछ हो भी नहीं पाएगा। एक्चुअली जब व्हेन यू सेड अबाउट पढ़ना ना, आपको पढ़ने का मन हो रहा है, सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल टर्म इन कोंकणी, एंड टर्म इन द सेंस द वर्ड विच वी यूज कॉल्ड आड़ पड़प। आड़ पड़प मतलब दोपहर की आफ्टरनून वाली नैप। आई हैव सीन मैनी शॉप्स इन गोवा वेयर देयर इज रिटर्न 1 to 3 PM या 2 to 4 PM closed, and our timings are written 8 to 1 and 4 to 7, something like that. So that's how Goans like to live, they can call it a king size life. इसका ही मैंने एक ये this concept called Susegard or Susegad or Susegado, I don't know. So I just wanted to understand, मतलब is it just a term now or does it still exist? It has different meanings for different people. Like for just many of them, they feel सुसेगाद मतलब lazy. बट मैं ऐसे देखता हूँ कि सुसेगाद नेचर हर एक में होना चाहिए, जब चाहिए और नेसेसरी भी है, क्योंकि आप ज़िंदगी के पीछे इतना भाग नहीं सकते हो। क्यों ना एक दिन आपको ज़िंदगी रोक लेगी, या फिर ऐसा होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने जी की नहीं है लाइफ बेसिकली। सो सुसेगाद नेचर इज़ इन्फ्यूज्ड मे बी बिकॉज ऑफ दिस होल नेचर, सॉइल, पीपल अराउंड, एंड इट टेल्स यू दैट यू नीड टू टेक योर ओन ब्रेक्स एट द राइट टाइम. It tells you कि quality of life is finally end of the day is what you're looking for, rather than just running behind life or money. I know why the question of Susegad came to your mind, because this whole place is giving you that vibe. Seriously मतलब बाहर अच्छी खासी धूप है अभी। हाँ हम लोग एकदम मतलब कार से निकले झुलस के आए हैं। Correct. लेकिन द मोमेंट वी एंटर्ड दिस प्लांटेशन ऑफ हाँ, तो मैंने आते ही आपको जैसे बोला ना, एक हैमक लगाओ और बस आड़ पड़ो। That's what I'm gonna do.
Yeah, we have an ancestral house right behind, which I'll show you. What I know and what I remember this place is my entire childhood. Whenever we used to come in April, May used to be our vacations. We used to come, we used to be chilling around in this, playing around here, playing games like right from your cricket या फिर इनको झाड़ को हम ना एक पोल बना के इसको एक गेम करते हैं खम्बे मतलब खम्बे. अच्छा. तो उस गेम को एक खम्बा छोड़ो, भागो इसके पीछे, एंड देन नेबर्स यूज्ड टू जॉइन अस अराउंड. या शिट मैन, आई सो एनवी यू. मतलब ये जो बचपन की छोटी छोटी यादें हैं ना, चाहे वो जैसे हम कल बात कर रहे थे, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो तब के कार्टून्स हो, दूरदर्शन के सीरियल्स हो. आई मीन मतलब दिस इज नॉस्टैल्जिया. हम कहते हैं कि गोवा में बीचेस के अलावा क्या रखा है, और यहाँ 2 दिन हो गए और मैंने बीचेस को जरा सा भी मिस नहीं किया. मे बी दैट्स बिकॉज देयर आर ऑलवेज मोर थिंग्स टू डू दैन व्हाट वी एक्सपेक्ट, और स्पेशली अब जब अ लॉट ऑफ प्रोफेशंस डोंट रिक्वायर अस टू गो टू द ऑफिस. So why not make a place our home for some time and get a feel of what life is like there? Remember, there's no rush. You have earned this journey, so why not enjoy it?